वेलकम ऑल इन आईसीटी को फॉर यू चैनल। मैं कृपेश नायक आईसीटी को फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एज यू ऑल नो दैट आईसीटी को फॉर यू channel uploading education video. There are 150 plus video of standard 11, 12 and some of the educational videos are also there. So those who are already subscribed this channel, I am heartily congratulate and thankful to you. And those who are new viewers, please subscribe my channel. Go in Google, type www.icteco4u and then click on this view on my channel so that you can find out so many notifications, so many importance links, importance videos regarding education of standard 11, 12. So you can type www.icteco4u, then you can find out this type of views and then you can subscribe, press the subscribe button, press the bell button and get so many notifications. As you all know that in 2018 up to March 2018 to July August 2020, there are 6 papers for the board and we have completed section A, B, D and E. C is going on. March 2018, July 2018 has completed. What are the tricks, what are the tips that are already discussed in last video. So keep video watching till the end because there are so many important tricks, so many important tips are there. What are the importance, what are the importance points, how to remember. In section C there are 2 marks. Those who are still not having exam due to COVID-19, keep in mind that 30% proportion are not considered in this video, so you have to watching just in 17% video. So those who are new viewers and those who are don't still not having subscribe, please subscribe this channel and press bell the button so then you can find out so many notifications. And then after go to the playlist, you can find out section A, B, E and full chapter, revision chapter, important question. This all are from this channel. So let's start our board paper 2019 section C, standard 12, general stream, English medium, subject economics, arts and commerce, both Gujarat board. Let's start with one important motivational quotes. बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब में तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसका एक चैप्टर तुम्हारा लिखा हुआ जुड़ जाए। बराबर है। तो मेहनत करनी है, मेहनत करने से आपको सफलता मिलेगी और सफलता ऐसी मिलनी चाहिए कि हम खुद जो किताब पढ़ रहे हैं उस किताब पे हमारा चैप्टर आ जाए। काफी हार्ड वर्क है, इतना इजी नहीं है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। ध्यान में रखना, आपके पास ताकत है, आप बहुत सारे जो सफलता 10th के बोर्ड के एग्जाम में लेके आए हो, A1 A2 भी आप करके आए हो, तो आपके लिए आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है आपके लिए, तो कर सकते हैं हमेशा। लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी ऑफ मार्च 2019 मार्च सेक्शन सी। These are the question for section C in 2019 boards paper. So let's start each and every with their important links. State the different types of diagram. Keywords. डायग्राम और ग्राफ के अंदर मिक्सअप मत करना। यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट कि अगर डायग्राम के टाइप पूछे जाते तो हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम ऐसे करते हैं। डायग्राम का मतलब कीवर्ड से याद रखना। टाइम के बारे में पाई करो। टाइम दैट इज टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। बारे में दैट इज बार, बार यानी बार डायग्राम। बार डायग्राम में सड़क मूवी को याद करो। सड़क यानी एस सिंपल, डी यानी डिवाइडेड, क दैट इज क्लस्टर। तो सड़क सिंपल डिवाइडेड क्लस्टर, सिंपल डिवाइडेड क्लस्टर, तो स ड क, यहाँ से स ड क लिया है। एंड थर्ड इज पायर डायग्राम। टोटल टाइम, बार एंड पायर डायग्राम, 3 डायग्राम है। पर बार डायग्राम के अंदर 3 सब पॉइंट है। सड़क, सिंपल डिवाइडेड एंड क्लस्टर। 2 मार्क्स के अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स। नाउ गिव द क्वेश्चंस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस क्या है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है। सेक्शन डी के अंदर बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। सेक्शन सी के अंदर सिर्फ यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चंस फॉर यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कीवर्ड सी ओनली इजी एंड करेक्ट कमांड। ओनली इजी एंड करेक्ट कमांड ध्यान में रखना। ओनली इजी एंड करेक्ट कमांड, ये ओनली इजी करेक्ट और कमांड जो है वो इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ओनली एड नॉट स्टडी मटेरियल। Computer technology is only aid, not study material. It is easy and fast, but not replace the process of studying. Fast है मगर वो study की तो जगह नहीं ले सकता। Correct formula
नॉलेज इज रिक्वायर्ड। कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो कमांड अच्छे से आपको दिमाग में होने चाहिए। कमांड ऑफ कंप्यूटर प्लेस रॉन्ग, रिजल्ट विल रॉन्ग। अगर आपने गलत रख दिया कहाँ पे तो उसका रिजल्ट रॉन्ग था। डीप में समझने के लिए, हर एक पॉइंट को डीप में समझने के लिए कमेंट बॉक्स में जाओ। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगी, वो लिंक के अंदर 100% आपको पूरा कंटेंट समझा है, तो आप वहां से चैप्टर वाइज समझ सकते हो। नाउ एक्सप्लेन एनी टू लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर इन ब्रीफ। नेशनल इनकम की हमें जो लिमिटेशंस है वो ब्रीफ में इंडिकेट करनी है। तो कीवर्ड्स, पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने की मेथड तैयार करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उनको कैलकुलेट करने की मेथड तैयार करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज पॉपुलेशन, सेकंड इज डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन द ट्रू नेशनल इनकम, थर्ड इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये तीन बात ध्यान में रखनी है। फर्स्ट पॉपुलेशन, सेकंड डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन द ट्रू नेशनल इनकम, थर्ड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो आपको 100% 2 मार्क्स मिलेंगे। नाउ स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन ई के अंदर 2-3 बार पूछा, सेक्शन डी के अंदर 2-3 बार पूछा, सी के अंदर भी आ गया है। तो फुल एसी में परचेस बढ़ेगा और हम सरप्राइज हो जाएंगे। एसी में अगर कस्टमर आएंगे परचेस करने के लिए तो उनका कुछ ना कुछ तो वो लेके ही जाएंगे। एसी है तो चलो एसी में जाके परचेस करें, और हम सरप्राइज होंगे कि एसी लगाने से भी कस्टमर बढ़ जाते हैं। बस ये लॉजिक ध्यान में रख के की बनाई है, फुल एसी में परचेस बढ़ेगा और हम सरप्राइज हो जाएंगे। फुल, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑल sectors of economy, constant price rise, purchasing power of money decreases, suppressed inflation। ये पॉइंट है। पॉइंट के अंदर 2-3 पॉइंट कैसे समझाना है वो लिंक के अंदर आप क्लिक करोगे, पूरा आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट है, पॉइंट के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ समझाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फ्लेशन। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, उसके बाद ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या था। ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मीन्स के हर एक सेक्टर के अंदर प्राइस राइज होती है, कांस्टेंट प्राइस राइज होती है। ऐसा नहीं कि 1-2 मंथ चली और फिर रुक गई, ऐसा नहीं। उससे परचेसिंग पावर जो होगी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी, जेब खाली होती जाएगी, हम परचेस करना जाएंगे तो प्राइस वहां पे बढ़ती हुई नजर आएगी, तो हम परचेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे परचेसिंग पावर हमारी डिक्रीज होगी। एंड सप्रेस इन्फ्लेशन, यानी कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट भाव को दबा देते हैं, प्राइस को दबा देते हैं, मगर एक्चुअली वो दबी नहीं होती है, वो मार्केट के अंदर तो अप ही हो जाती है। ऐसे कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि फुल एसी में परचेस बढ़ेगा तो सरप्राइज होंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कांस्टेंट प्राइस राइज, परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज, सप्रेस इन्फ्लेशन। ये 3 बात, 4 बात, 5 बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, डिफाइंड बार्टर सिस्टम, गिव ओनली पॉइंट्स ऑफ लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 तक के 3 पेपर में से अभी तक सेक्शन सी में 2 बार आया है। सेक्शन डी की बात करें तो ए टू ई से लेके हम अगर बात करें तो तकरीबन 3 से 4 बार एक क्वेश्चन आ गया है। डबल एब्सेंट, ट्रिपल डिफिकल्टी, 2 बार एब्सेंट रहोगे, 3 बार आपको डिफिकल्टी होगी। तो फर्स्ट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ द बॉन्ड्स और प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, एब्सेंस 2 बार हमें दिख रहे हैं, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एंड एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट्स। ये 2 पॉइंट के अंदर हमें ध्यान में रखना है, डबल का यूज करना है। फर्स्ट डबल यानी डबल एब्सेंट यानी 2 बार एब्सेंट। एंड ट्रिपल डिफिकल्टी, डिफिकल्टी 3 बार होगी। डिफिकल्टीज इन डिफर्ड पेमेंट्स, डिफिकल्टी ऑफ द स्टोरिंग वैल्यू, डिफिकल्टी ऑफ द इनविजिबिलिटी ऑफ द कमोडिटी। तो डिफाइंड बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन और उसके बाद उनकी लिमिटेशन, ये 3 बात आपको ध्यान में रखनी है। कोई 3 पॉइंट बोलो तो 3 पॉइंट समझाना है। टेक्स्ट बुक के अंदर 2 या 3 पॉइंट ही है, यहाँ पे थोड़े से इजी करने के लिए 4 या 5 पॉइंट आपको कन्वर्ट करके दिए, क्योंकि डिफर्ड पेमेंट का जो पॉइंट है वो टेक्स्ट बुक के अंदर डीप में समझा नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर समझा दिया है। तो ये 6 पॉइंट आप 2 मार्क्स के लिए लिखोगे, दैट्स इनफ। एक्सप्लेन सेंट्रल बैंक इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर मैनेज करोगे तो क्रेडिट रेट बढ़ेगा, ये मार्च 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सेक्शन डी के अंदर भी 1-2 बार आ गया है कि सेंट्रल बैंक जो है बैंकर्स की बैंक है, या उसके जो मेन फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, उसके अंदर भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ है। तो कीवर्ड से रेगुलरली मैनेज करोगे तो क्रेडिट बढ़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलरली, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटर ऑफ ऑल शेड्यूल बैंक। आरबीआई जो है वो रेगुलेटर है, उसके हिसाब से सभी को चलना पड़ता है। देन मैनेजेस कैश रिजर्व, always central bank implement some of the monetary policy, some of the quantitative and qualitative policy are implemented, and they manage the cash reserves, then direct the credit policy। वो हर एक अपने अपने जो पैरेंट्स बैंक है, सभी कॉमर्शियल बैंक है, उनको
जो क्रेडिट है वो पॉलिसी मेंटेन करने की डायरेक्शन देता है, यानी डायरेक्शन उनको मिलती है कि कब 20% कैश रिजर्व रखना है, कब 10% रिजर्व रेशियो रखना है। तो ये सभी बातें यहाँ से जान सकते हैं हम कि सेंट्रल बैंक जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए उनको 100% कॉमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्शन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल बैंक, हर एक बैंक को रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट कितने रखने हैं उनकी जानकारी मिलती है आरबीआई से। आरबीआई जो है वो 100% फॉलो अप करवाती है कॉमर्शियल बैंक से, कितने परसेंटेज उसके हाथ में कैश रिजर्व होने चाहिए, कितने परसेंटेज कैश रिजर्व है, तो फिर वो दूसरों को लोन दे सकते हैं, एडवांस दे सकते हैं, कौन से रेट पे एडवांस दे सकते हैं। ये सभी बातें सेंट्रल बैंक जो है वो एज ए गवर्नमेंट की बैंक की तरह करती है। तो सेंट्रल बैंक इज ए बैंक टू दी गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि ये सभी काम तो करती है। और दूसरा काम ध्यान में रखना, इतने पॉइंट से नहीं चलने वाला। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो गवर्नमेंट के टैक्सेस जो है वो भी रिकवर करती है। गवर्नमेंट, बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट दे कैन टेक द टैक्सेस। सेकंड, बहुत सारा काम ऐसा है गवर्नमेंट का, अगर रिजर्व बैंक कोई भी डिसीजन लेना चाहती है तो गवर्नमेंट को गाइड करेगी, गाइडेंस देगी। बैंक रेट बढ़ाना है, बैंक रेट कम करना है, रेपो रेट में क्या चेंजेस करने हैं, तो ये स्पेशल एडवाइजरी भी कमिटी एडवाइजरी रिपोर्ट भी वो गवर्नमेंट को देते हैं। साथ साथ बहुत सारे जो बिल्स होते हैं वो भी पे करती है। क्रिटिकल कंडीशन के अंदर रिजर्व बैंक गवर्नमेंट को भी हेल्प करने के लिए जो भी उसके पास रिजर्व फंड्स जो कुछ भी है वो चीप रेट पे गवर्नमेंट को देती है। और इकोनॉमी के अंदर 100% स्टेबिलिटी, इक्वलिटी और ग्रोथ इकोनॉमी में कैसे हो वो सभी बातें ध्यान में रखती है। तो ये है सेंट्रल बैंक इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉवर्टी, ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न अप्रोच जो है वो एक बार अभी तक पूछा गया है मार्च 19 के अंदर, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड अगर बढ़ेगा तो नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी पूछने के लिए आगे बढ़ सकते हैं एग्जामिनर। एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉवर्टी, तो कीवर्ड्स, नॉन इनकम से एचडीआई का नॉलेज बढ़ेगा, नॉन इनकम से एचडीआई का नॉलेज बढ़ेगा। अगर आपके पास इनकम नहीं है तो एचडीआई के जो 3 कंपोनेंट्स है उनसे आपका नॉलेज बढ़ सकता है। इनकम नहीं है तो कोई बात नहीं, एचडीआई से आपका नॉलेज बढ़ सकता है। तो नॉन इनकम थिंग्स इंक्लूडेड, मॉडर्न के अंदर जो नॉन इनकम, पहले के जो अप्रोच थे उसके अंदर हमारे खाने पीने के लिए जो हम कैलोरी यूज करते हैं वो परचेस करने के लिए एक लिमिट थी, यानी इनकम के बारे में ज्यादातर उसके ऊपर फोकस किया था कि हमारी इनकम, अगर गांव में रहते हैं तो 2144, शहर में रहते 2400, उनको अचीव करने के लिए कितने खर्च हम कर सकते हैं, वो इनकम रिलेटेड बहुत सारा फोकसिंग हुआ था। तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर नॉन इनकम थिंग्स इंक्लूड की गई, जैसे आपकी हेल्थ, आपका एजुकेशन, उसके साथ साथ आपका हाउसिंग फैसिलिटी, आपका पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, आपको मिल रही जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये सभी बातें उसके अंदर डिस्कस हो रही है। सेकंड, एचडीआई एंड एसपीआई आल्सो मेजरिंग ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन क्रेडिट इंडेक्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे इंक्लूड हुए। नॉलेज, हेल्थी लाइफ एक्सेट्रा, ये सभी बातें, नॉलेज की, हेल्थ की, ये सभी बात 8-10 ऐसे पॉइंट है जो आप कमेंट बॉक्स में जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको 100% थर्ड चैप्टर के अंदर से सभी बातें जानने को मिलेगी। तो सॉरी, पॉवर्टी के 5th चैप्टर के अंदर से आपको सभी बातें जानने को मिल सकती है। तो एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच के अंदर ये रास्ता है आपको कि नॉन इनकम थिंग्स इंक्लूडेड, वो आपको डिस्कस में रहना है। एचडीआई एसबीआई आल्सो मेजरिंग ग्रोथ, वो भी ध्यान में रहना है। नॉलेज और हेल्थ और लाइफ के बारे में उन्होंने कंसिडर किया है मॉडर्न अप्रोच के अंदर गवर्नमेंट ने, तो ये बातें हमें डिस्कस करनी है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में दूसरी बार एक क्वेश्चन आया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वो अलग है, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना वो अलग है। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे मिक्सअप करते हैं। जनधन योजना है तो उसकी कीवर्ड्स इस तरह से है, जब आप बिगिन करो तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखो और उनके फीचर के बारे में खास सोचो। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो वो उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको ध्यान में रखो और उनके फीचर के बारे में खास सोचो, उनके फीचर के बारे में खास सोचना है हमें। तो बिगिन, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ऑब्जेक्ट और फीचर्स
के 4 अंडरलाइन है नीचे। बिगिन, कब जनधन योजना स्टार्ट हुई? 28 अगस्त 2014। सेक्शन बी के अंदर बार बार ये क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन वाज प्रधानमंत्री जनधन योजना वाज स्टार्टेड, सो दैट इज 28 अगस्त 2014। देन इंपॉर्टेंस क्या थी, क्यों ये जनधन योजना स्टार्ट करनी पड़ी, किसका मकसद था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्ट टू हिट्स ऑफ रूट ऑफ पॉवर्टी को खत्म करने के लिए ये स्टार्ट की गई थी। और फीचर्स आपके टेक्स्ट बुक में है, वीडियो के अंदर है, लिंक मैंने की है। फीचर्स के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दूसरा, अगर आप इस डेट तक अगर करोगे तो आपको कुछ ना कुछ एडवांस लोन के बारे में भी आपको बेनिफिट मिलेंगे, इंश्योरेंस भी आपको मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो वीडियो के अंदर होंगे, लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको थर्ड चैप्टर के अंदर सब कुछ, फिफ्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर के अंदर, फिफ्थ पॉवर्टी के चैप्टर के अंदर से आपको सब कुछ मिल सकता है। तो फीचर्स के बाद हम बात करते हैं आगे 28 क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विद एग्जांपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके एग्जाम्पल और डेफिनेशन आपको 100% ध्यान में रखने हैं। चैप्टर के अंदर ये बातें ध्यान में रखना कि उनके टाइप्स कहीं से भी आपको आ सकते हैं। तो डेफिनेशन को एग्जाम्पल से याद रखो। एक्सप्लेन द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विद एग्जाम्पल, तो उसका आंसर है कीवर्ड से डेफिनेशन को एग्जाम्पल से याद करो। डेफिनेशन, न्यू ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम, ये सबसे पहले मेन पॉइंट याद रखना है। If the new system are going in the market, going in the economy, and going in the unit where the generate employed, and the new technology are directly fighting with old technology. New technology और old technology आपस में फाइटिंग करती है कि नहीं, अब हमें अगर कंप्यूटर बनाना है तो टच स्क्रीन वाले बनाने हैं, अगर हमें मोबाइल बनाने हैं तो टच स्क्रीन वाले बनाने हैं। तो अगर एम्प्लॉई पुराने कीपैड वाले या विदाउट टच वाले जो बनाते हैं, ऐसे एम्प्लॉय होंगे तो दे आर वर्कआउट, उनको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, रिफ्रेश होना पड़ेगा। तो ये न्यू एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी के बीच जो मारामारी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है शॉर्ट टाइम के लिए, वो है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। और जब वो ट्रेनिंग ले लेते हैं, उनको समझ में आ जाती है बात है कि ऐसा ऐसा करने से हम भी टच स्क्रीन के मोबाइल के ऊपर वर्क कर सकते हैं, तो तब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो ये है एग्जांपल हमने दिया स्मार्टफोन और फोन का। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन एंड विद व्हाट ऑब्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन स्कीम वाज स्टार्टेड। ध्यान में रखो, दूसरी बार जुलाई 2018 के बाद मार्च 2019 के सेक्शन सी के अंदर 2 बार लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। यू मार्क इट इंपॉर्टेंट, व्हेन एंड वेयर। तो इरिगेशन का मतलब पानी, ध्यान में रखना, पानी की सुविधाओं करने की बात हो रही है। तो पानी का काम सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन फील्ड में ही होता है। तो ध्यान में रखना कि कीवर्ड्स, एक साथ 15 ग्लास पानी नहीं पी सकते। डेट को याद रखने का तरीका, एक साथ यानी 17 और 2015, एक साथ 2015 ग्लास पानी नहीं पी सकते। तो वाटर टू एवरी, वाटर यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर। व्हाट इज द वाटर टू एवरी फील्ड, यानी हर एक खेत को पानी मिले, ये प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन स्कीम की फर्स्ट जानकारी आपको होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव कौन सा है। स्टार्ट होने के लिए एक साथ 2015, मगर उनका ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखो, इरिगेशन यानी पानी, पानी यानी हर एक फील्ड को पानी मिले, वाटर टू एवरी फील्ड, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। एक्सप्लेन एग्रीकल्चर एज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी till the 2018 March paper to 2020 August 2020 paper, there are 5 to 6 times this question are going to ask in question. And agriculture as a backbone of the Indian economy is very very important in section C and in section D, repetitively, turn by turn it comes in your board's paper, so you mark it very very important. employment industries में मिलेगा, employment industries में मिलेगा तो फॉरेन जाना नहीं पड़ेगा, और फूड सिक्योरिटी से बेटर इन्वेस्टमेंट होगी। दिस इज द कीवर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में रहेगा तो फॉरेन नहीं जाना पड़ेगा, यानी जो एम्प्लॉय है अगर वो इंडस्ट्री से अपनी रोजगारी मिलते रहेगी उसको, तो बाहर नहीं जाएंगे, और देश के अंदर ही अपना फूड रहेगा, फूड की सिक्योरिटी भी यहाँ पे रहेगी, और हम दूसरी जगह बेटरली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट, दैट इज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। सेकंड इज industries, that is provide raw material industries. Third underline is foreign, that is on foreign exchange. Fourth is food, that is food security. Fifth is better, that is called better standard of living. Then
लास्ट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज इंक्रीज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। 2 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट को ध्यान में रखना है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर अंडरलाइन की गई है, पैराग्राफ वाइज से सब कुछ समझा है और उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो ये आपके दिमाग में रहेगी तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख पाओगे। ये सभी पॉइंट मिला के हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। नाउ व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन डी के अंदर भी बार बार उसकी शॉर्ट नोट आ रही है। 6 पेपर में से अभी तक 5 या 7 बार व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट ए शॉर्ट नोट ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ध्यान में रखना है। काफी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी की को। टेक्नोलॉजी वाले पायलट होते तो वो हाई और मॉडर्न कंपोनेंट की पसंद करते। टेक्नोलॉजी वाले पायलट होते तो हाई और मॉडर्न कंपोनेंट ही पसंद करते। टेक्नोलॉजी वाले अगर पायलट बन जाते तो वो क्या करते, पायलट यानी सब कुछ हाई और मॉडर्न भी, टेक्नोलॉजी भी उनकी मॉडर्न ही होती है। तो टेक्नोलॉजी वाले पायलट होते तो हाई और मॉडर्न कंपोनेंट ही पसंद करते। तो फर्स्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, फ्रॉम 1661 से बात हो रही है। सेकंड, पायलट प्रोजेक्ट इन 7 डिस्ट्रिक्ट। देन HYVP का फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्शन ए ऑल्सो सेक्शन बी ऑल्सो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYVP, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम्स। देन मॉडर्न, दैट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये सभी बातें आपको डीप में डिस्कस करनी है। सभी बातें ध्यान से पढ़ने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर पूरा मैंने वीडियो शेयर किया है, कमेंट पे क्लिक करना, लिंक पे क्लिक करना। तो चैप्टर एग्रीकल्चर के अंदर से ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, HYVP क्या है, उनका रोल क्या है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से वेपन्स, कौन कौन से हमें टूल्स का यूज करना है, कौन से मीन्स से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, और कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे क्रॉप रोटेशन की बात होगी, मल्टीपल क्रॉपिंग की बात होगी, ये सभी बातें उसके अंदर आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। 2 मार्क्स से मगर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, हमें तो 2 मार्क्स मिलेंगे। Now next, give the meaning of the domestic or island or international trade. Very very important. Trade activity taking place inside the geographical boundary of a country is called national or domestic. Trade activities taking place inside the geographical boundary of a country is called national. I repeat again, अगर पूरे देश की जो सरहद है, सरहद के अंदर जो भी लेन देन होती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, स्टेट एक दूसरे को करते हैं, दैट इज फॉर इनलैंड और डोमेस्टिक ट्रेड। और इंटरनेशनल के अंदर द ट्रेडिंग एक्टिविटी टेक प्लेस आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी बार आई है, जुलाई 2018 के पेपर के बाद मार्च 2019 के पेपर में आई है। सेक्शन डी के अंदर दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी बार बार पूछे गए हैं, तो यू मार्क इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, What is special economics zone? You mark it very very important. अभी तक के 6 पेपर के अंदर से 7 to 8 टाइम वेरियस C और D के अंदर बार बार पूछे गए हैं। तो CEZ सेज या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कीवर्ड्स, एरिया ऐसे पसंद करो जहां पे आप जिनको इंट्रोड्यूस करें उनका स्टार्ट पूरे हमारे कंट्रोल में हो। एरिया हम ऐसा पसंद करेंगे बिजनेस का, और जिनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बिजनेस के लिए, उनका जो स्टार्ट होगा अपने बिजनेस को वो स्टार्ट करेंगे, वो पूरे हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। यानी एरिया हमें ऐसा पसंद करना चाहिए कि अगर हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्स करते हैं, तो उनका कंट्रोल हमारे अंदर होना चाहिए। तो विच टाइप ऑफ एरिया, जहां टैक्स फ्री है, जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, ऐसे एरिया के अंदर SEZ सिलेक्ट किया जाता है। इंट्रोड्यूस ईयर एंड पर्पस, उनका ईयर है 1/4/2000, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2000 के अंदर से स्पेशल इकोनॉमी जोन स्टार्ट हुआ था। उनका एक ही मकसद इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, उनको इंकरेजमेंट देने का, उनको अच्छी तरह से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ डीलिंग करे, वही है। हु कैन स्टार्ट है, गवर्नमेंट जो भी उनको नॉर्म्स के हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन वो स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का पूरा उसके ऊपर कंट्रोल होता है। कहाँ कहाँ जोन्स है इंडिया के अंदर, कौन से कितने हैं, कितने हमने मंगवाए हैं, कितने प्रपोजल किए हैं, ये सभी बातें यहाँ पे डिस्कस होगी। नाउ नेक्स्ट, हाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर यूजफुल इन डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन। हर एक को नीड होती है वॉल्यूम ऑफ टोटल प्रोडक्शन की, हर एक को एक नीड होती है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हर एक की एक ख्वाहिश होती है, हर एक इंडस्ट्रीज की एक ख्वाहिश होती है, हर एक की एक नीड होती है कि अपना वॉल्यूम ऑफ टोटल प्रोडक्शन बढ़े। तो हाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर यूजफुल डिसेंट्रलाइजेशन, तो नीड लेस कैपिटल, नीड लेस कैपिटल, कम से कम कैपिटल से हम जाते बढ़ सके, ऐसा हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ टोटल प्रोडक्शन, हमारा वॉल्यूम बढ़ना चाहिए।
तो स्मॉल स्केल जो है वो इंडस्ट्रीज को डिसेंट्रलाइज करने के लिए ये बातें दो ध्यान में रखती है। गिव द डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइग्रेशन की यहाँ पे मिक्सअप कर देते, वो मिक्सअप करनी नहीं है। जनरली द माइग्रेशन ऑफ द people from rural area to urban area, rural से गांव में से यहाँ आते हैं, that is called urbanization. So you all are take this all question very carefully. सेक्शन ई सेक्शन बी का क्या है उनके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करो, वहां से प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कीप वॉचिंग ICT का फॉर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस जुलाई 2019 पेपर्स इन सेक्शन सी। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।